Bismillahirrahmanirrahim. I am Syed Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, Government Postgraduate College, Mansehra. Today's my topic is Karl Marx, Theory of Class War or Warfare. Karl Marx was a German-born philosopher, economist, political theorist, historian, sociologist, journalist, and revolutionary socialist. He was born on May 5, 1818 in Trier, a town in what is now Germany. Karl Marx is best known for his theories that led to the development of Marxism. His ideas also serve as the basis for communism. Karl Marx is considered as the father of communism. He passed away on March 14, 1883 in London. Karl Marx was a philosopher and economist who believed that societies are divided into different classes based on how they interact with the means of production, the resources and technologies used to produce goods and services. In his view, there are two primary classes, the bourgeoisie and the proletariat. First, the bourgeoisie. These are the wealthy capitalists who own the means of production, such as factories, land, and machinery. They make profit by employing the proletariat and selling the goods and services produced. तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के मुताबिक दो क्लासेस हैं, एक बोर्जियासी जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अपर क्लास है और वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको ओन कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट्रीज हैं, लैंड है, मशीनरी है, और वो प्रोलेटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है उससे काम लेते हैं और वो जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वर्कर्स प्रोलेटेरिएट उससे वो मुनाफा कमाते हैं बोर्जियासी जो कि कैपिटलिस्ट अपर क्लास है. Proletariat या working class. The proletariat refers to the working class who do not own the means of production. Instead, they sell their labor to the bourgeoisie in exchange for wages. अब जो proletariat है, जो working class है, lower class, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और उनकी मेहनत के बलबूते पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं और उससे जो मुनाफा आता है वो बुर्जियासी या अपर क्लास लेती है और वो जो मेहनत करते हैं उसके बदले में उन्हें मजदूरी दी जाती है, वेजेस पे की जाती हैं. Marx argued that there is a constant struggle or conflict between these two classes known as class warfare. Here is how it typically unfold. तो मार्क्स के मुताबिक इन दोनों क्लासेस के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है, कांस्टेंट स्ट्रगल है जो जारी रहती है, जिसे वो क्लास वार या क्लास वारफेयर का नाम देता है. और इसकी जो अहम खसूसियात हैं, सबसे पहली है एक्सप्लॉयटेशन. Marx believed that the bourgeoisie exploit the proletariat by paying them wages that are lower than the value of the goods and services they produce. This difference is called surplus value, and Marx saw it as the source of profit for the bourgeoisie. अब मार्क्स का ये बिलीव है और वो ये समझता है कि बोर्जियासी जो हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं
और जितनी वो मेहनत करते हैं वर्कर्स, उसके बदले में वो उन्हें कम मुआवजा देते हैं। और ये जो डिफरेंस है उससे वो सरप्लस वैल्यू कहता है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है, ये मार्क्स कह रहा है कि ये अपर क्लास या बुर्जुआजी को जाती है, हालांकि ये लोअर क्लास या वर्किंग क्लास को ये सरप्लस वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करते हैं और चीजें प्रोड्यूस करते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, अब वो लोअर क्लास के हवाले से बता रहा है कि वो डिससेटिस्फाई हैं, क्योंकि उन्हें उस जितनी ज्यादा वो मेहनत करते हैं उसके बदले में कम मुआवजा मिलता है। He also argued that work under capitalism leads to dissatisfaction and frustration for the proletariat. This means that workers feel disconnected from the products of their labor, which are owned and controlled by the bourgeoisie. They lack control over their work and often feel like mere parts in a machine. तो अब चूंकि उनमें फ्रस्ट्रेशन है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बदले में उन्हें कम मुआवजा मिलता है, और वो जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि वो वर्कर्स जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उनको फैक्ट्री का जो मालिक है या जो अपर क्लास है, कैपिटलिस्ट है, वो ओन कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह वो जस्ट जैसे एक मशीन है, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, उसके पुर्जे काम कर रहे होते हैं, वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं। Cyclic conflict. Marx predicted that this exploitation and alienation would lead to periodic conflict between the bourgeoisie and the proletariat. These conflicts could take various forms such as strikes, protest or even revolutions. तो अब मार्क्स के नज़दीक ये एक साइक्लिक कन्फ्लिक्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, प्रोलेटेरिएट हैं, वो बुर्जुआजी से, अपर क्लास से डिससेटिस्फाई हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन है और हैट्रेड है, जिसके नतीजे में स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वो, और वो ये प्रिडिक्ट करता है कि इसके नतीजे में रेवोल्यूशन भी आ सकता है। Classless society. Marx imagined a future where the class struggle would intensify to the point where the proletariat would overthrow the bourgeoisie, and this would lead to the establishment of a classless society where the means of production are collectively owned and there is no exploitation. अब मार्क्स इमेजिन करता है, वो एंटिसिपेट करता है एक ऐसा फीचर कि जहां पर एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, कि जब ये जो स्ट्रगल है इनके दरमियान, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसके नतीजे में प्रोलेटेरिएट बुर्जुआजी को ओवरथ्रो करेंगे और एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली एज ए होल पूरी सोसाइटी ओन करेगी, और फिर कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। Marx's idea about class warfare have had a significant impact on social and political thought, inspiring movements such as socialism and communism. तो जाहिर है इसका एक इम्पैक्ट है, और इसी के नतीजे में हमारे सामने सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज आती हैं। However, critics argue that his prediction about the inevitable collapse of capitalism and the establishment of a classless society have not come to pass in the way he anticipated. लेकिन जो critics हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह वो एंटिसिपेट करता था, इमेजिन करता था, और वो ये समझ रहा था कि कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह वो सोच रहा था इसी तरह मुमकिन हो फ्यूचर में। अब चूंकि ये एक थ्योरी है और इस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है और इस पे क्रिटिसिज्म किया गया है,
तो इस क्रिटिसिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन नेचर। वन क्रिटिसिज्म इज दैट Marx theory overlooks the role of human nature. Critics argue that people are not solely motivated by economic factors like class struggle. They point out that individuals have diverse interests, aspirations, and motivations beyond just their economic class. तो critics के नज़दीक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर से ही मुतासर नहीं होते, और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं है जो उनकी ज़िंदगियों को मुतासर करता है, बल्कि उनकी और भी नीड्स हैं, उनकी इंटरेस्ट हैं, एस्पायरेशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा भी हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने इग्नोर किया है और जस्ट उसने इकोनॉमिक फैक्टर को ही डिस्कस किया है, मटेरियल को ही डिस्कस किया है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी। Some critics argue that capitalism, despite its flaws, is more efficient at allocating resources and promoting innovation as compared to system proposed by Marx. They highlighted the role of competition in driving productivity and technological progress. तो कुछ जो critics हैं उनका ये ख्याल है कि कैपिटलिज्म में फ्लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक एफिशिएंट सिस्टम है एज कंपेयर टू मार्क्स ने जो सिस्टम प्रपोज किया है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम देखें या प्रमोशन ऑफ इनोवेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है मार्क्स के कम्युनिज्म या सोशलिज्म के मुकाबले में। और क्रिटिक्स ने फर्दर ये कहा कि चूंकि ये कंपटीशन का दौर है और जाहिर है कंपटीशन में जो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, जो ज़्यादा जिसका स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होता है, वो ही सरवाइव करती है, और ये सिर्फ कैपिटलिज्म में मुमकिन है, और इसी तरह से ये इसका एक बेनिफिट बता रहे हैं। Incentives. Critics also contend that Marx's ideas about collective ownership of the means of production can lead to a lack of incentives for individual to work hard or innovate. कि क्रिटिक्स का ये भी ख्याल है कि मार्क्स ने जो कलेक्टिव ओनरशिप की बात की है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म की बात की है, मींस ऑफ प्रोडक्शन को सोशलाइज करने की बात की है, तो इससे ये होगा कि लैक ऑफ इंसेंटिव आ जाएगा, और जब कोई इंसेंटिव इंडिविजुअल्स के सामने ना हो तो वो फिर काम नहीं करेंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, मेहनत करने के लिए इंसेंटिव की ज़रूरत होती है, और ये उस वक्त ही मुमकिन है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो, और इसी के नतीजे में ये इसका एक फ़ायदा है कि ये इंसेंटिव के तौर पे फिर लोग जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये इनोवेशन की तरफ लेके जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। Critics often pointed out that Marx's analysis was based on the specific conditions of 19th century industrial capitalism, और उनका ये भी ख्याल है क्रिटिक्स का कि ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें चूंकि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया था, तो वो उसी को ऑब्जर्व करके तो मार्क्स ने ये अपनी जो थ्योरी है ये पेश की है। They argue that his prediction about the inevitable collapse of capitalism and emergence of communism have not materialized as he envisioned. और उनका ये भी ख्याल है कि जिस तरह उसने इमेजिन किया था
या वो समझ रहा था कि कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा और कम्युनिज्म उसकी जगह ले लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। Totalitarianism. Some critics raise concern about the potential for authoritarianism and totalitarianism in Marxist-inspired regimes. They point to historical example where attempts to implement Marxist ideas led to oppressive regimes and human rights abuses. अब कुछ क्रिटिक्स जो हैं उनका ये भी ख्याल है कि जो मार्क्स के आइडियाज हैं सोशलिज्म या कम्युनिज्म के लिहाज से, तो ये अथॉरिटेरियन रूल या टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं और इस तरह से एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट माज़ वजूद में आ सकती है जो कि लोगों के राइट्स को, उनकी लिबर्टीज को वायलेट कर सकती है। Potential for social and economic reforms. Critics argue that Marx's focus on class struggle and revolution overlooked the potential for social and economic reforms within democratic system. They advocate for policies that address inequality and promote social justice without necessitating a complete overthrow of the existing economic system. तो क्रिटिक्स का ये भी ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन ही के ज़रिए और पूरे सिस्टम को ओवरथ्रो करके ही जस्टिस लाया जाए और इक्वलिटी को मुमकिन बनाया जाए। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हुए रिफॉर्म्स के ज़रिए भी ये काम किया जा सकता है और जस्टिस और इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।